ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਜੀਆਈ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ कि यह बीमारी ठीक हो जाती है। मतलब बुखार मित्र है, इसको उतारना नहीं चाहिए। अब ये सवाल पूछो, फिर बुखार हो तो करना क्या चाहिए। हम बचपन से अगर सुनते आए हैं ना, तो पूछते हैं 2 वक्त की रोटी। आयुर्वेद कहता है जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। अभी राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया हार्ट अटैक की वजह से। तो क्या करना चाहिए था उस टाइम पे? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई डॉक्टर सिखा रहा है? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੋ ਮਿਰੋਕ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਗਈ? ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਾਚਾਰ, ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਡਨੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਪੈਥੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੀਵਰ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਿਟੌਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਠ, ਮੁੰਬਈ, ਆਪਣਾ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁੜਗਾਂਵ, ਐਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿਮਸ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ 100 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ, ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ ਉਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਵਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਨੋ, ਇਹ
ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਰੀਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਡਨੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜੋਂ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਥੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 90 ਸਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਪਹਿਲੇ 120 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 66 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ 84 ਸਾਲ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ 79 ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 72 ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ 74 ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ 66 ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ 79 ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ 84 ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏਗਾ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਘਾਹ ਖਾਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਧੁੱਪ ਸੇਕਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਡੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਡੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦਾ, ਬਾਡੀ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਸੀ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗੂਗਲ ਤੇ BBC ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ? ਰੀਜ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਗਧੇ, ਹਾਥੀ, ਬੈਲ, ਗਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਖੁੰਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਚੱਪਲ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ 6 ਸੈਂਸ, ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆँख ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ शिव की आँख बोलते हैं। इन्हू पीनियल ग्लैंड कहते हैं, 3rd आई चक्रा इसको बोलते हैं। आपकी बॉडी को आभासीय शक्ति, तो आपको आभास हो जाता है, जैसे आपको सामने वाले को मिलके पता है यार ये बंदा ठीक नहीं है। इंट्यूशन बोलते हैं ना कि आपकी कोई सहेली है, आप उसके साथ बैठे लेकिन नेगेटिविटी आ रही है आपको, और किसी के साथ बैठ के आपको पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे मैं आपको इंटरव्यू में सवालों के जवाब दे रहा हूँ कि किडनी ठीक हो सकती है, लीवर ठीक हो सकता है, आपको पता लग जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, और पेशेंट को भी पता लग जाएगा। जो सामने बैठा हमें देख रहा है ना, उसके अंदर भी एक छठी इंद्री है, उसको समझ आएगा ये आदमी इतने कॉन्फिडेंस से जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ, हमारे जितने भी हिम्स हॉस्पिटल हैं वहाँ आओ, देखो, पेशेंट से मिलो, खुद समझो कि क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं और कैसे दुनिया को ठीक करते हैं। जैसे हिम्स हमारा डेराबस्सी में है, लखनऊ में है, मुंबई में, मेरठ में, अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, कई शहरों में, और इसके अलावा भागलपुर है बिहार में, गोवा में है, मुंबई में, थाने में भी है। तो ऐसे कई शहरों में हमारे हिम्स है। तो मैं सारे इंडिया को चैलेंज करता हूँ, जिसको भी किडनी फेल है, लीवर फेल है, कैंसर है या थैलीसीमिया, जिसमें कि बंदे को, बच्चे को हर हफ्ते खून चढ़ाना पड़ता है, ऐसी बीमारी जिसमें बोलता है इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओ, मैं आपको 150 बच्चों की लिस्ट दे दूंगा जिनका खून चढ़ना बंद हो गया, क्योंकि अभी हमारे से संपर्क ही लगभग 250 बच्चों ने किया। तो और कुछ बच्चे हैं जिनका अब हफ्ते की जगह 20 दिन में चढ़ रहा है, महीने में चढ़ रहा है। देखो, हम भगवान नहीं है, हम सबको ठीक नहीं कर सकते, हम भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है, गाइड सही कर सकते हैं। हाँ, झूठ नहीं बोलेंगे,
मिसगाइड नहीं करेंगे, आपको सही बात बताएंगे कि आपका कितना भविष्य है, कैसा बीतने वाला है। ਪਰ ਅਗਰ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲੇ 200 ਪੌਣੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਜੀਆਈ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਸਭ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, MBBS ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ BMS ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ MBBS ਲਿਖਦੇ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ MBBS ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ BMBS ਹੈਗਾ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ BAMS ਹੈਗਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ BHMS ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ MBBS ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ MBBS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। BMBS ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈਟਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ MBB ਆਏਗਾ, MBBC ਆਏਗਾ, S ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ MBBS ਬਣਾਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ BMBS, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਰਜਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੈਥੀਆਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ, ਸਿੱਧਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ 15 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 50-50, 60-60% ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਸੱਤੇਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੋਰੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਸਿਨ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਇੰਨਾ, ਆ ਇੰਨਾ, ਆ ਇੰਨਾ, ਆ ਇੰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਨ ਟੈਸਟ, ਫੇਕ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਓਗੇ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ MBBS MD ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ CMO ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ MBBS ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ MBBS MD ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ MBBS MD ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ MBBS MD ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਨਾਮ BMBS ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BFBS ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ MBBS ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸਰੂਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਜੋ ਫੂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਹੂੰ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 250 ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 1000 ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ 100 ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ 16 ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 20 ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਸਾਡੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਜੀਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੀਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਜੀਵੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੁੱਟਪਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਮਸ। ਹਿਮਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। मतलब एलोपैथी भी, आयुर्वेद भी, होम्योपैथी भी, नेचुरोपैथी भी, पंचकर्मा भी, यानी कि सारी पैथियाँ इकट्ठियाँ। ਜੀ ਪਰ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਿਮਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ? ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਊ, ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਊਗਾ ਪੱਕਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੋਲੀ ਖਾਓ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਬ ਤੱਕ ਖਾਓ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖਾਓ। तो गोली खाई रखते हैं। जिਵੇਂ थायराइड की गोली लोग कई साल से खा रहे हैं, पेन किलर्स लोग कई साल से खा रहे हैं, बीपी की गोली कई साल से खा रहे हैं। कोई भी गोली अगर आप लगातार खाओगे तो हमारी किडनी सप्रेस होती है उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों को बुखार चढ़ता है, जैसे आपको बुखार चढ़ेगा आप क्या करोगे? बुखार हमारा मित्र है मैडम। मेडिसिन क्यों? कोई स्कूल कॉलेज क्यों नहीं सिखा रहा? बुखार मित्र है। बुखार जब आएगा आपके भले के लिए आया। बुखार चढ़ा मतलब बॉडी चाहती है अंदर कोई वायरस, बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है जिसको बॉडी ने न्यूट्रल करना है, हराना है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। तो बॉडी क्या करती है? उसके खिलाफ शक्ति बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है। ये बॉडी, मैंने बोला ना भगवान है, तो भगवान ने खुद बुखार चढ़ाया ना, तो भले के लिए चढ़ाया। आप गोली लेके उतार दोगे। मैं आपको पेशेंट मिलवा देता हूँ जिसने बुखार हुआ, गोली खाई और 15 दिन बाद चेक कराया किडनी फेल हो गई। मैं आपको पेशेंट मिलवाता हूँ, बुखार हुआ, गोली खाई, थोड़े दिन बाद कैंसर हो गया। मतलब बुखार मित्र है, इसको उतारना नहीं चाहिए। अब आप ये सवाल पूछो फिर बुखार हो तो करना क्या चाहिए? सोल्यूशन क्या है उस चीज़ का? देखो, बुखार, जुकाम, खांसी, फोड़ा, फुंसी, उल्टी और दस्त, ये सब मित्र हैं। मतलब उल्टी भी मित्र है, दस्त भी मित्र है, फोड़ा फुंसी भी मित्र हैं और बुखार भी मित्र है, जुकाम भी मित्र है। बेसिकली मित्र कैसे हैं? ये हमारे भला करते हैं। जैसे आपको जुकाम लग गया तो बॉडी क्या कर रही है? आपके लंग्स में कोई टॉक्सिन जमा ना हो जाए, बॉडी नाक के रास्ते बाहर निकाल रही है। जैसे आपको छींक आती है, बॉडी खुद करती है, छींक लाती है। मतलब कोई वायरस बॉडी में या धूल का कण बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा था, बॉडी ने कहा नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, एक प्रेशर से, एक स्पीड से उसको फेंका ताकि वो, और छींक की स्पीड लगभग 120 मील प्रति घंटा होती है। तो इतनी स्पीड से छींक क्यों आ रही है? ताकि वायरस दूर चला जाए मुझसे। मेरी बॉडी ने खुद की है ना छींक मारी। जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, आपकी पलकें झपक रही हैं, मेरी पलकें झपक रही है, 10 मिनट तक पलकें मत झपकाना अपनी। आपको पता है आप अंधे हो जाओगे। पॉसिबल ही नहीं। हाँ, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये झपकती अपने आप क्यों है? क्योंकि मेरी आँख के ऊपर की जो पुतली है, इसके ऊपर जो लेंस है, इसके ऊपर जो मेरा फ्लूइड है, उस फ्लूइड को बनाए रखने के लिए, और जैसे गाड़ी का शीशा वाइपर साफ करता है, इस वातावरण में बैक्टीरिया है, वायरस है, मिट्टी है, फंगी है, इन्फेक्शन घूम रहे हैं, धूल घूम रही है, आपकी मेरी डेड सेल्स घूम रही हैं, तो ये आंखों पे भी लग रही हैं। तो बॉडी क्या कर रही है? बार बार इसको साफ कर रही है, क्योंकि आँख खराब हो जाएगी। तो मतलब भगवान ने एक सयाना सिस्टम बना रखा है। जैसे मैं आपको बॉडी सयानी है साबित कर देता हूँ। जैसे हम रात को सोते हैं, सुबह हमारी नींद खुल जाती है तो हम यूरिन के लिए जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है बॉडी उसको रात को ही निकाल देती है, अपने आप ही बिस्तर गीला कर देते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, पेशाब निकल जाता है, लेकिन नहीं निकलता। बॉडी सयानी है, बॉडी आपको उठाती है, उठ पुत्र जाके बाथरूम जाके आ, उठ पुत्र जाके टॉयलेट जाके आ। कहने का मतलब ये है कि बॉडी सारा कुछ हमारे भले के लिए करती है, बॉडी हमें बचाने के लिए सब कुछ करती है। आपने एक सवाल पूछा था, जो आपने एक सवाल अभी क्या पूछा था मेरे से? मेरा सवाल यही था आचार्य जी कि आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आप लोग चेकअप करते हो, तो मैक्सिमम रीज़न क्या पाया जाता है? यही पाया जाता है कि मेडिसिन की वजह से ही किडनी लीवर्स फेल हो रहे हैं? मेडिसिन की वजह से, ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन, साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, स्ट्रेस, हमारी हैबिट्स जो बिगड़ी हुई हैं। देखो, दुनिया में कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया, तोता, कबूतर, आप कभी देखना सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाता, जापानी भी नहीं खाते। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जानवर है, इसको रात को 11 बजे पूछो शाही पनीर, हाँ जी, परोठा जी, सुखदेव के ढाबे पे चले जाओ अपना दिल्ली के पास, रात को 2 बजे लोग भटूरे छोले खा रहे हैं।
शादी में जाके लोग 500 रुपये दे रहे हैं, 2-2 हज़ार का खा रहे हैं। अच्छा 8 बजे पहुंच रहे हैं, सूप, 8:15 भल्ले, 8:30 पापड़ी, 8:45 चाउमीन, 9:15 मंचूरियन, 9:30 मलाई कोफ्ता, 9:45 बजे कोई रोटियां, फिर 10:15 बजे कोई कॉफ़ी, फिर 10:30 बजे कोई आइसक्रीम, फिर 10:45-11 बजे कोई पान, फिर कोई कॉफ़ी, फिर आइसक्रीम, 11 11:30 बजे तक यहाँ तक भर लेते हैं। अच्छा बीच में कोई दूध का गिलास टपता है वो डाल लेते हैं, कोई जलजीरा वाला टपता है वो भी डाल लेते हैं, बीच में फ्रूट भी खा लेते हैं, बीच में सलाद भी खा लेते हैं। मतलब खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे मेरे लीवर पे क्या बीत रही होगी। आपकी एक जेब होगी, उसमें कितना सामान भर सकते हो, भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, अल्टीमेटली फूल फूल के सूझ जाएगी। अच्छा बॉडी फिर परेशान होकर क्या करती है, कई बार सुबह पोटियाँ लगा देती है, कई बार उल्टियाँ लगा देती है। तो बॉडी सियानी है, बॉडी को पता है गंद है, लेकिन हम चले जाते हैं 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास। वो क्या बोलता है, पोटियाँ लग गई, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, इसको रोक लो, गोली ले लो। क्यों भाई, हीरे मोती निकल रहे हैं जो रोक लो, गंद निकल रहा है भाई, निकलने दो ना। ग्लूकोज की बोतल लगा देंगे, अच्छा डॉक्टर साहब कमजोरी महसूस हो रही है, अच्छा मैं ग्लूकोज लगा देता हूँ, सलाइन वाटर चढ़ा देता हूँ। अरे भाई कमजोरी लग रही है तो रेस्ट कर लेना 2 घंटे, ग्लूकोज क्यों लगवाया, और वो भी सीधा ब्लड में डाल दिया आपने। आपकी बॉडी में ग्लूकोज जाता है ना, तो बॉडी उसको पहले डाइजेस्ट करके उसमें एंजाइम्स मिक्स करके ब्लड में जाती है, लेकिन आप ग्लूकोज सीधा ब्लड में डाल देते हो। कितना बड़ा धोखा कर रहे हो आप बॉडी के साथ। इसीलिए किडनियाँ फेल हो रही हैं, लीवर फेल हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, थैलीसीमिया हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सड़क कूटने, एक सड़क बन रही है, वहाँ एक लेडी काम कर रही है, पत्थर लेके तोड़ रही है और प्रेग्नेंट है, उसको दर्द उठी, वहीं लोगों ने चद्दर चुद्दर ओढ़ के उसके बच्चा पैदा करा दिया, वो सवेरे फिर पत्थर तोड़ रही थी। तो बताओ वो स्वस्थ हुई कि हमारे घर वाली लेडी स्वस्थ हुई, जो एक बच्चा पैदा करके खड़क जाती हैं, 10-10 दिन बिस्तर से हिलती नहीं, फिर सारी ज़िंदगी कहती मेरी टांगें दुख रही हैं, बच्चा भी करती हैं तो सिजेरियन से करती हैं। कहने का मतलब यह शरीरों में जान नहीं है, क्योंकि हम गलत खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। अच्छा फास्ट फूड भी वर्ड गलत है, एक्चुअली जंक फूड खा रहे हैं। फास्ट फूड तो अच्छा है, फास्ट फूड क्या है, केला फास्ट फूड है, अमरूद फास्ट फूड है, सेब फास्ट फूड है, फास्ट फूड तो वो है, लेकिन हमने क्या बोला, मैगी को फास्ट फूड बोला, फास्ट फूड बोल दिया। जबकि फास्ट फूड क्या है, केला छिला मुंह में, आम छिला मुंह में, अमरूद छिला मुंह में, तो भैया वो था ना फास्ट फूड। तो कहने का मतलब आज बड़ी से बड़ी बीमारी अगर कोई दुनिया में ठीक कर सकता है तो वो एक ही आदमी है, और वो आपको शीशा देखने में नजर आएगा। मतलब आप शीशा देखो उसमें नजर आएगा वो आदमी आपको ठीक कर सकता है। तो शीशे में कौन नजर आएगा, यानी कि हम खुद, हमारे में शक्ति है अपने आप को ठीक करने की, हम सिर्फ आपकी मदद करते हैं माहौल पैदा करने में। हम जैसे जिक्र कर रहे थे, बुखार हो गया, मेडिसिन नहीं लेनी तो हम रिकवर कैसे होंगे? ठीक है जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है। अब सुनो, बुखार हो गया तो क्या करना है। जब भी बुखार, जुकाम, खांसी अगर कुछ हो जाता है तो आपको अपने घुटने जितना, घुटने तक बाल्टी में पाँव डुबोने हैं पानी में, गर्म पानी में, कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, और उसमें अपना ये घुटने तक का पाँव डुबो के बैठ जाना है, और एक बाल्टी में गर्म पानी साथ में भर लेना है। जैसे ये पानी ठंडा लगे तो इसका पानी गिराते जाना है, गर्म डालते जाना है। मतलब गर्म पानी में आधे घंटे से 1 घंटे तक पैरों को मेंटेन करना है। साथ में चाय जैसा उबलता हुआ गरम गरम पानी गुट गुट करके पीना है। यानी कि मैंने बॉडी को और गर्मी दी, बॉडी ने गर्मी चढ़ाई ना, तो मैंने इससे क्या करा, और गर्मी दी। मतलब मैंने बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर और दे दिया, 2 डिग्री टेम्परेचर और दे दिया, इससे बढ़ेगा ना मेरा टेम्परेचर। तो हुआ क्या, बॉडी का पर्पस सॉल्व हो गया, जिसके लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रही थी, वायरस को, बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर रही थी। तो 90% पेशेंट का तो एक ही बार में सेट हो जाएगा, बुखार दोबारा उतर जाएगा 1 दिन में ही, 2 घंटे में ही, जबकि आपको 5 दिन लगते हैं वैसे रूटीन में। दवाई खाओ तो भी 5 दिन लगते हैं, नहीं खाओ तो भी 5 दिन लगते हैं। दूसरा, अगर किसी का एक बार में नहीं उतर रहा तो यही सुबह और शाम कर लो, फिर अगले दिन दोबारा कर लो। और दूसरा परहेज क्या है, 3 दिन तक खाना नहीं खाना, मतलब पका हुआ भोजन नहीं खाना। खाना मतलब पका हुआ भोजन या कोई भी पदार्थ जो जानवर से आ रहा है, जैसे दूध, अंडा, नॉनवेज, दाल, रोटी, चावल, ये नहीं खाना। खाना क्या है, नेचुरल फूड, सैलड। उल्टा बोल रहे हो, डॉक्टर्स हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हुई तो आप जितना ज़्यादा खाओगे उतनी जल्दी आप उसको हील कर पाओगे। मैडम फिर वो डॉक्टर कौन से है, वही बात है ना, अंग्रेज डॉक्टर, जो भारतीय डॉक्टर नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारी गीता में, हमारी रामायण में, महाभारत में लिखा हुआ है, और हम रोज कर रहे हैं अपने। अच्छा आपने पूछा आप हॉस्पिटल में पेशेंट कैसे ठीक कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हैं और पेशेंट ठीक हो रहे हैं।
आयुर्वेद कहता है, अच्छा एक बात बताओ, हमारे अंदर एक तत्व है जिसके निकलने से हम मर जाते हैं, वो क्या तत्व है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं आत्मा। अच्छा, और हम बोलते हैं आत्मा को विलीन किस में होना है? परमात्मा। परम मतलब सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की, जिसको बोलते हैं परमात्मा, यानी कि परम, परम मतलब सबसे बड़ा, जैसे परम शक्तिशाली, परम वीर चक्र सुना होगा, ऐसे आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, लंघन परम औषधम, यानी कि उपवास ही दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ औषधि, यानी कि लंघन। 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला योशिओरी ओसुमी को, जो कि जापानीज साइंटिस्ट है। किस बात पे मिला? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब आपको 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे कुछ नहीं खाना, बॉडी को खाली छोड़ना है, तो बॉडी के अच्छे सेल्स बुरे सेल्स को खुद ही खा जाएंगे, भूख लगेगी तो, यानी कि लंघन परम औषधम। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, गर्म हो गई तो क्या करोगे? गाड़ी रोकेंगे ऑफ कोर्स, या उसमें पानी डालेंगे। हाँ। ठंडी करोगे। ऐसे ही बॉडी को आप सुबह 7 बजे आपने चाय पी, 2 बिस्किट खाए, 9 बजे आपने नाश्ता करा, 11 बजे आपने फिर चाय पी, 2 बजे आपने लंच करा, शाम को फिर आपने स्नैक्स ली, रात को फिर डिनर लगा, फिर उसके बाद सोते टाइम दूध का गिलास पिया। आप पूरा दिन बॉडी को यूज़ कर रहे हो। आप कहोगे बॉडी कैसे यूज़ हो रही है? मेरा मुंह यूज़ हो रहा है। भगवान ने गलती कर रखी है बहुत बड़ी, यहाँ पे ना शीशा नहीं लगाया आर पार देखने वाला। आपने 11 बजे खाया और आपको 3 बजे दोबारा खाना खाने के लिए बोल दिया, आपको देखना था पहले वाला कहाँ घूम रहा है अभी। तो ये गलती भगवान ने गलती कर दी, शीशा दिखना चाहिए था आर पार वाला। एक खाने को हजम होने में मैडम 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग खाने का सही समय क्या है? हम बचपन से अगर सुनते आए हैं ना, तो पूछते हैं 2 वक्त की रोटी। आयुर्वेद कहता है जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। और हम खा रहे हैं 7 बार, तो हो गए महारोगी, तो हो ही रहे हैं। तो आयुर्वेद कहता है 2 बार खाओ, तो हम कहते हैं सुबह 9-10 बजे खाओ और शाम को 5-6 बजे खाओ। ये लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हमारा कंसेप्ट नहीं है, ये अंग्रेजों का कंसेप्ट है, कृपया इसको छोड़ दो। जी, चलिए आचार्य जी, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा भी सवाल पूछते हैं। आपने इतना कुछ बता दिया, पेशेंट्स को हील करने का आपने बता दिया कि खुद ही जो पेशेंट है अपने आप को हील कर पाता है, आप इसमें आयुर्वेद में आए कैसे? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बचपन में जब मैं 15, 16, 17 साल का हुआ, जब मैंने होश संभाला, तो मैंने नोटिस करा कि मैं बहुत बीमार रहता था पूरे घर में अपने। मतलब मैं अपने पूरे परिवार का सबसे बीमार बच्चा था, यानी कि इवन कि मेरी मम्मी भी परेशान थी। कई डॉक्टरों से मुझे दवाई खिलाई थी, मेरा हीमोग्लोबिन कम था, मेरे को हर 3-4 महीने में जॉन्डिस हो जाता था, निमोनिया हो जाता था, इवन कि मुझे दवाई खानी पड़ती थी, कई बार एडमिट भी होना पड़ता था, इतना कमज़ोर था मैं। इवन कि एक ज्योतिष के कहने पे मेरे को शनि की ढैया बताई और शनि दान बताया, तो मेरे को तराजू पे एक तरफ बिठाया और एक तरफ मेरे बराबर का वजन भी दान किया शनि वाले, जो शनिवार को जो डाकोत घर पे आते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उसको किया, गेहूं दिया, काले तिल दिए, तिल दी। तो मैं एक तरफ बैठा, मेरा वजन था उस टाइम 32 किलो, और जब मेरी ग्रेजुएशन के आसपास मेरा वजन था 39 किलो। तो हुआ क्या, मैं इतना बीमार रहता था, मैं परेशान हो गया था। इवन कि मैं ये भी सोचता था आत्महत्या कर लो, इस ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ा। तो मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, श्री गंगानगर राजस्थान में रहते थे। मैं उनके पास गया 3 महीने के लिए, गया तो 1 महीने के लिए था, लेकिन मैंने वहाँ 3 महीने लगाए। वहाँ मेरा कायाकल्प हुआ आयुर्वेद की मदद से। पहली बार मुझे आयुर्वेद की शक्ति पता चली, आयुर्वेद समझ आया, जड़ी बूटियाँ समझ आई, खाने पीने का सिस्टम समझ आया। और वहाँ मैंने मेरे मौसा जी जो डॉक्टर थे उनको पास रह के देखा कि सारी दुनिया, शुगर का मरीज भी ठीक हो रहा है, बीपी का मरीज भी ठीक हो रहा है, इवन कि उनको खुद को हार्ट प्रॉब्लम थी और उन्होंने आयुर्वेद से रिवर्स करी उसको। फिर वहाँ पे मैंने उनके पास ही रहना शुरू कर दिया, वहीं पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी आगे की, करता गया, पढ़ाई होती गई, करता गया, लोगों से मिलता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया। ऐसे करते करते आज मुझे पूरे 27 साल हो गए। 27 साल से मैं इसी आयुर्वेद, हेल्थ, नेचुरोपैथी, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन और डाइट के फील्ड में हूँ। इसी की पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी में ही कोर्सेज कर रहा हूँ, इसी में पढ़ा रहा हूँ, इसी में डॉक्टर्स के साथ काम करके पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए इस दिशा में काम कर रहा हूँ। तो 27 साल से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने हिम्स का भी हम जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ गाइड करते हो कि लाइफस्टाइल चेंज करो, खाना पीना चेंज करो। इसके अलावा कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई कुछ देते हैं आप, या सिर्फ ये गाइडेंस ही? नहीं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, दवाई देते हैं जिसको ज़रूरत होती है। जी। और हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं उनका दवाई का कोई चार्ज नहीं लेते, सब फ्री होता है। जो भी जड़ी बूटियाँ, जो भी दवाइयाँ, कोई काढ़े, कोई चटनियाँ कुछ देते हैं तो फ्री देते हैं। और पेशेंट को गाइड ज़्यादा करते हैं, डाइट चार्ट,
क्या खाएं क्या नहीं खाएं। हम ना दो चीज़ सिखाते हैं, भोजन और खाना, ये दो अलग बातें हैं। आप बोलोगे खाना और भोजन तो एक ही है। खाना मतलब वो जो इंसान बनाता है, भोजन मतलब वो जो भगवान बनाता है। तो हम कहते हैं जब बीमार पड़ो तो खाना छोड़ दो, भोजन बढ़ा दो। जैसे जानवर क्या करते हैं, बीमार पड़ते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, घास खाते हैं, रेस्ट करते हैं, धूप सेकते हैं। वही हम पेशेंट को कराते हैं। हम हरी सब्जियां खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, कई तरह के जूसेस पिलाते हैं, नारियल पानी, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ काढ़े देते हैं, नंगे पाँव घास पे घूमने को बोलते हैं, अर्थिंग की बात करते हैं, मतलब हम बोलते हैं धरती से जुड़ो। लिविंग वाटर पिलाते हैं, जैसे झरने का पानी होता है ना, उस तरह हम लिविंग वाटर खुद बनाना सिखाते हैं। इसके अलावा हम उनको हॉबीज़ पे काम करते हैं, उनको खुश रहने की बात करते हैं। जैसे आपकी हॉबी क्या है? अभी तो कुछ हॉबी रह ही नहीं गई है। मैं आई वांट टू बी अ गुड जर्नलिस्ट, दैट्स गुड जर्नलिस्ट, यानी कि लिखना पसंद है आपको और इंटरव्यू लेना पसंद है। तो जो भी हमारे पास पेशेंट आता है उसकी हॉबी पूछते हैं और उसको बोलते हैं अपनी हॉबी पे काम कर। होता क्या है, जब पेशेंट अपनी हॉबी पे काम करता है ना, कोई ड्राइंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई शतरंज खेलता है, बॉडी हील हो जाती है, क्योंकि हॉबीज़ में आपका ब्रेन कंसंट्रेट होता है, आपके मन का पसंद काम हो गया वो। जैसे कुछ लोगों की हॉबीज़ होती हैं कुकिंग करना, तो पेशेंट आके बोलता है मेरे को कुकिंग करनी पसंद है, तो हम बोलते हैं तू कुकिंग पसंद है ना, खाने का भी शौक है? कहता है नहीं। तो मैं कहा बनाने का, पका के खिलाने का शौक है। हम बोलते हैं अपने शेफ़ के साथ लग जा और लोगों को पका पका के बना, नई नई चीज़ें सिखा, हमें भी सिखा और खुद भी सीख। तो ऐसे करके हम हॉबीज़ से, अर्थिंग से, लिविंग वाटर से, डाइट से, लाइफस्टाइल से और साथ में बॉडी के क्लीनिंग से। जैसे आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, मतलब सर्व रोग, दुनिया में जितने भी रोग हैं इनका निदान कुपित मल को निकाल दो, यानी कि बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल दो, आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी, आयुर्वेद कहता है। तो हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं पंचकर्मा से। कुछ तरह की मसाजेज होती हैं, कुछ थेरेपीज होती हैं, एक गर्म पानी के टब में बिठाया जाता है, कुछ मतलब हेड डाउन टिल्ट है, सिर नीचे कर देते हैं, पैर ऊंचे कर देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करते हैं, उसको घास पे लेटने के लिए बोलते हैं। या जैसे आप गोवा जाते हो, मुंबई जाते हो, तो होटलों के बाहर एक ऐसे वाला झूला होता है, तो ऐसे वाला झूला हमारे हॉस्पिटल में थेरेपी है, इसको सी शेप पोस्चर बोलते हैं। तो उसको पोस्चरल मेडिसिन के अंदर काउंट करते हैं हम, मतलब पैरों से और सिर से ब्लड सर्कुलेशन पेट पे बढ़ गया आपका, उससे अपने आप ही आपकी बॉडी हील हो रही है। ऐसे ही उसको हम हंसना सिखाते हैं वहाँ पे, और उसको ना माफ़ी मांगना सिखाते हैं। एक डायरी देते हैं हम, बोलते हैं लिखो तुमने बचपन से लेकर आज तक किस किस का दिल दुखाया है, किस किस का चीटिंग करी है, किसी का नुकसान किया है, किसी को दुख दिया, माफ़ी मांगो भगवान से। और फिर थैंकफुल रहो जिन जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की है, थैंकफुल रहो भगवान के प्रति जिसने तुम्हें आज तक जज दिया। जैसे आपको मेरे पास देखने के लिए 2 आँखें हैं, तो हम बोलेंगे थैंक यू बोलो आँखों का। अच्छा, पिछली बार आपने अपने सुंदर फेस के लिए किसको थैंक यू देता? पिछली बार कब दिया था? अभी जस्ट कल ही खुद को। ओके, और सुंदर आँखों के लिए किसको दिया था? ऑफ कोर्स गॉड। तो हम रोज़ करवाते हैं, सुबह शाम 2-2 3-3 बार, कि आप दिन भर थैंकफुल रहो, माफ़ी मांगो। उससे होता क्या है, बॉडी का हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है और बॉडी अपने आप ही किडनी जो सिकुड़ चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसको हील करना शुरू कर देता है। कि लीवर जो सिकुड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, अपने आप ही हील होना शुरू हो जाता है। तो हम ये प्रोसेस सिखाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को एकदम खड़े पैर अभी आपके सामने किसी को हार्ट अटैक पड़ जाए तो क्या करोगे आप? मेरा फर्स्ट कॉल डॉक्टर को जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, कॉल करेगा, हॉस्पिटल को कॉल एम्बुलेंस करोगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे। 5 मिनट नहीं आई, 10 मिनट नहीं आई, 15 मिनट नहीं आई, 25 मिनट नहीं आई, क्या करोगे? अगर इसमें पेशेंट मर गया तो, जैसे के मर गया, सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई, इसके अलावा और दक्षिण के कई हीरो की डेथ हो गई, अभी राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया हार्ट अटैक की वजह से, तो क्या करना चाहिए था उस टाइम पे? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई डॉक्टर सिखा रहा है? मैं आपको बताऊं, आप क्या करो, पेशेंट को बोलो कि ये कुर्सी पे ऊपर हूँ मैं, कुर्सी पे नहीं, पेशेंट को जैसे किसी को भी हार्ट अटैक पड़े, सारे दर्शक देख लें, उसको ज़मीन पर ना सहारा देकर ऐसे बिठा दें, बस ऐसे बिठा दें। इसको बोलते हैं हार्ट सेफ पोजीशन। तो पहले कैसे बिठाना है? ऐसे, हार्ट सेफ पोजीशन। फिर उसको इतना बड़ा एक अदरक का टुकड़ा दे दें और उसको बोलो फटाफट चबाना शुरू कर, इतना चबा, इतना चबा, इतना चबा, जब तक आँखों से पानी ना आ जाए। जब आँखों से पानी आए ना, समझो बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ गया, वैसोडाइलेशन शुरू हो गया, नसें खुलनी शुरू हो गई, तो आपका पेशेंट बच जाएगा हॉस्पिटल के आने तक, एम्बुलेंस के आने तक, और हो सकता है उसको डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, नहीं तो हॉस्पिटल तो आसान से पहुंच जाएगा। ये इसको फर्स्ट एड बोलते हैं हम, क्योंकि ब्लॉकेज बॉडी को इमीडिएटली नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन मिल गया, ब्लास्ट हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड का, और बॉडी ने ब्लड सप्लाई कर दी, बढ़ा दी वहाँ पे। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सिखाते हैं अपने हॉस्पिटल में। जैसे अगर आपका कोई पेशेंट बेहोश हो जाए तो क्या करोगे आप?
उसको सांस देने की हॉस्पिटल फोन कोशिश करोगे, करेंगे। भी हाँ, एम्बुलेंस को फोन करोगे और मर गया तो, जैसे ही कोई बेहोश हो गया उसका होठ आगे करके इस जगह पे जरा सी लाल मिर्च डाल दो, इमीडिएटली उसको होश आ जाएगा। करके देखो ना। मतलब छोटी छोटी बातें हम हॉस्पिटल में सिखाते हैं। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आजकल सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ताकि मेरा पैसा ना लगे हॉस्पिटल में नजायज। जबकि आपको सच्चाई बताऊं, ये रिपोर्ट हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है कि हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोग लुट रहे हैं। डॉक्टर लोग ज़्यादा, मतलब लोग, उनका गलत इलाज हो रहा है, उनका नजायज ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर देखता है हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख रुपए का पॉलिसी पैसे देगी, उसका कोई ऑपरेशन नहीं भी करना डॉक्टर कर देते हैं। ये रिपोर्ट्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोगों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराने लगते हो तो जिससे भी करा रहे हो, या पॉलिसी बाजार से करा रहे हो या किसी एजेंट से करवा रहे हो, उसको बोलो मुझे 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस दे दे। कौन सा? 100% आयुष कवर वाला। उसका फ़ायदा वो एलोपैथी में भी चलता है और आयुर्वेद में भी चलता है, यानी कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स में वो हेल्थ इंश्योरेंस भी चलता है, यानी कि पेशेंट का पैसा बच जाएगा जो हमारे हॉस्पिटल में लगने वाला था। तो कितनी बड़ी बात है, देखो ये। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी जानकारी आपने जो दी है। खासकर फर्स्ट एड के बारे में बोला गया, तो लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको भी एडवाइस है कि एक बार खुद को भी देखें कि आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि आप खुद ही अपने डॉक्टर हैं, तो एक बारी आयुर्वेद पे भी ज़रूर भरोसा करके ज़रूर देखो। जो लोग नहीं भरोसा करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं हम लोग जाकर हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाकर, पर हमारा मरीज़ जो है वो नहीं ठीक हो पाता। तो एक बारी ज़रूरी है ये भी, क्योंकि आयुर्वेद जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, तो इस पर एक बारी भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन शरद के साथ शालू मिरोग, चंडीगढ़।